اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو آپ کے موبائل پر ملک کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، حکومت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی کر سکتے ہیں، پابندی کے ساتھ آپ چینل کی مدد کیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل، جو لگاتار معصوم مظلوم فلسطینیوں پر بمباری کرتا رہتا ہے، گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 6 بچوں سمیت 32 فلسطینی اسرائیلی آتنکی بمباری میں شہید ہوئے ہیں، اور میں نے عالم اسلام کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی کہ کہاں سو گئے ہو، کہاں تم مر گئے ہو، کیا تمہیں ان معصوم مظلوم بچوں، بہنوں، بھائیوں کا خون نظر نہیں آتا؟ خیر، ابھی خبر آ رہی ہے کہ غزہ کی حالت یہ ہے کہ غزہ میں انسانی بحران کا معاملہ ہے۔ 1500 مکانات تقریباً تباہ ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، 4 بچے اور 4 خواتین شہیدوں میں شامل ہیں، جبکہ 265 سے اوپر زخمی ہیں۔ حماس نے بھی اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد اسرائیل کے خاتمے تک جاری رہے گی، یعنی ہم اسرائیل سے لڑتے رہیں گے۔ وہیں پر اسرائیل نے بھی دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس موقع پر اب ہمیں وقت آ گیا ہے کہ غزہ میں اسلامی جہاد تحریک پر کاری ضرب لگائی جائے، یعنی اسرائیل چاہتا ہے کہ اسلامی جہادی تحریکوں کو ختم کرے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بہانے یہ فلسطین پر قبضہ چاہتا ہے، بیت المقدس پر قبضہ چاہتا ہے، مظلوموں کا خون بہا رہا ہے۔ عالم اسلام کو تھوڑی سی غیرت اور عالمی اسلام کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے اٹھیں اور فلسطین کی ماؤں، معصوم بچوں کے درد کو سمجھے۔ عالم اسلام سے اس وقت فلسطین کا ہر بچہ، ہر بہن، ہر ماں مدد کی پکار لگا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ تازہ رپورٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ مصر جو ہے اسرائیل اور فلسطین میں کے درمیان جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے، ثالثی بنا ہوا ہے، اور خبریں آ رہی ہے کہ جو گزشتہ کل 32 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں تھیں، وہ تعداد اب 44 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 15 معصوم چھوٹے چھوٹے بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی مصر کا شکریہ ادا کیا، لیکن شرم آنی چاہیے تمام اسلامی ملکوں کو کہ جنگ بندی ہو گئی، شکریہ ادا کر دیا، اسرائیل
छूट गया, इतने बेकसूरों को मारकर इजराइल छूट गया। इजराइल पर आलमी पैमाने पर अक़वाम मुत्तहदा ने भी खामोश तमाशाई बना नहीं रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहदा ने भी इस पर मुंह खोलना चाहिए और इजराइल को आतंकवादी डिक्लेयर करना चाहिए। नाज़रीन, ताइवान और चाइना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ताइवान के करीब चीन की नई फौजी मशक की खबरें आ रही है और चीन ने कहा है कि हम एंटी सबमरीन हमलों और समंदरी छापों की मशक कर रहे हैं और करेंगे। अमेरिका समेत ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चाइना की इस मशक की निंदा की, मजम्मत की, गुस्से का इजहार किया और कहा कि इनका मकसद यानी चाइना का मकसद आबनाए ताइवान की मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करना है। आपको याद होगा, मैंने इससे पहले बताया था कि जैसे ही ये मामला सामने आया और अमेरिका की एक खातून जिम्मेदार का ताइवान दौरा हुआ, इसको लेकर चाइना ने गुस्से का इजहार करते हुए अमेरिका को वार्निंग दी थी। बाद में फिर 2 दिन के बाद अमेरिका भी चाइना को वार्निंग दे रहा था, लेकिन लोगों का ये मानना है कि चाइना, ताइवान ये हालात ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि यूक्रेन और रशिया के बाद चाइना और ताइवान ये तमाम मुल्कों की जंगें या दुश्मनियां आलमी वार, थर्ड वार की तरफ बढ़ रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, हमारे प्यारे मुल्क के प्यारे प्यारे लाडले वजीर आज़म नरेंद्र जी मोदी, इनके ताल्लुकात पूरी दुनिया में हैं, बल्कि इतने बड़े ताल्लुकात है कि जो ट्रंप वगैरह जितने भी थे बड़े बड़े अमेरिका के प्रेसिडेंट वगैरह, वो प्रचार करने के लिए इनको बुलाते हैं और वहाँ जाकर ये प्रचार भी करते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन ये भी एक हिस्ट्री है। अब इससे क्या कहें, बदनसीबी कहें या क्या कहें, जितनों से ये मिले वो सब के सब गिरे, उनकी हुकूमत गई। लेकिन खैर, वज़ीर आज़म के ताल्लुकात बड़े गहरे हैं। कभी कभी तो अचानक वज़ीर आज़म बिन बुलाए बगैर बताए पाकिस्तान पहुंच भी जाते हैं और वो जिससे, जब पाकिस्तान भी जिससे मिलने गए थे तो उसकी भी हुकूमत चली गई थी। खैर, आइए, अभी खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म की यानी मोदी जी की पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बहन है जो उन्हें राखी बांधने की तमन्ना रखती है। जी हाँ, उन्होंने हिंदुओं के त्यौहार रक्षाबंधन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को राखी भेजी है। कमर मोहसिन ने इसके साथ ही 2024 के आम इलेक्शन में एक बार फिर मोदी को कामयाबी की दुआएं भी दी है। यानी कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में मोदी जी की कामयाबी के लिए दुआएं हो रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म की मुंह बोली बहन कमर मोहसिन शेख ने उन्हें राखी भेजी और इस साल ये त्यौहार 11 अगस्त को मनाया जाएगा। कमर मोहसिन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात के लिए शिद्दत से मुंतज़िर हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस मरतबा हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात ज़रूर होगी। और कमर मोहसिन, मोदी जी की मुंहबोली बहन ने ये भी कहा है कि 2 साल तक कोरोना की वजह से मैं उनको राखी बांध नहीं सकी, अलबत्ता मैंने राखी को जो है डाक से भेज दिया था मोदी जी को। कमर मोहसिन का ये भी कहना है कि मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा मोदी जी मुझे दिल्ली ज़रूर बुलाएंगे। मैंने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। मैंने उनके लिए अपने हाथों से राखी तैयार की है। इसमें रेशम का एक फीता इस्तेमाल किया है जिस पर कशीदाकारी की गई है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है म्यांमार रोहिंग्या को लेकर। जी हाँ, रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार वापसी को लेकर खबर आ रही है कि चाइना उनकी मदद करेगा। चाइना ने ये वादा किया है कि वो हजारों रोहिंग्या पनागजीनों को म्यांमार वापस भेजने में बांग्लादेश की मदद करेगा। अपनी जान बचाने के लिए म्यांमार से भागकर आने वाले 10 लाख से जायद रोहिंग्या बांग्लादेश में पनागजीन हैं। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा AK अब्दुल मोमिन ने अपने चीनी हम मनसब के साथ इतवार के रोज ढाका में बातचीत की। बुधमत अक्सरियती मुल्क म्यांमार में जुल्म जबर से बचने के लिए 10 लाख से ज़ायद रोहिंग्या मुसलमान वहाँ से भागकर बांग्लादेश आ गए थे। उनमें से बेशतर रोहिंग्या सन 2017 में आए थे और बांग्लादेश में कई कैंपों में रह रहे थे। आपको याद होगा कि 2017 में रोहिंग्या में मुसलमानों पर जुल्म सितम के इतने पहाड़ तोड़े गए थे कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिंदा उनको मारा गया, जलाया गया, गाड़ा गया। 2017 में मैं हज को था तो मैदान अरफात में हम जब लोग होटल से लग्जरी बस के में बैठकर निकल रहे थे, उसी वक्त मैंने वहां से एक वीडियो अपलोड किया था और उनके लिए वहां दुआएं की थी और तमाम
दुनिया के लोगों से दुआओं की अपील की थी और इस्लामी मुल्कों से मैंने कहा था कि म्यांमार की इस दरिंदगी पर रोक लगाओ। तो आज मुझे याद आ रहा है कि म्यांमार के मुसलमान जो बांग्लादेश में हैं, चाइना उनकी मदद करने के लिए तैयार है ताकि वो इत्मीनान के साथ अपने मुल्क, अपने घरों पर वापस पहुँच जाएँ। नाज़रीन, दो बड़ी खबरें इस वक्त मेरी निगाहों के सामने कोरोना को लेकर आ रही। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो कोरोना से मुतासिर और कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अब वो सेहतयाब हुए हैं और पहली मर्तबा अब अपनी आबाई रियासत का वो दौरा कर रहे हैं। इतवार के रोज़ कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद पहली बार व्हाइट हाउस से अपनी आबाई रियासत रवाना हो गए, जहां वो खातून अव्वल से मुलाकात करेंगे, उनके साथ वक्त गुजारेंगे। वहीं पर एक खबर ये भी आ रही कि हांगकांग की होटलों में क्वारंटाइन की जो मुद्दत है उसमें 3 दिन की कमी कर दी गई है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फेनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।